Hello. So I think now I can see that my voice is audible. So I'm just hoping that you guys are really making good money. और अगर आपने मेरा नंदन डेनिम का वीडियो देखा था और आपने उसमें पैसे बनाए हैं, once the levels were broken out, please give a thumbs up. बनता है, right? किसी ने लिखा था कि ये सीमा जैन is an operator for Nandan Denim. Why should I be an operator? You know, I can't trade. मैं तो ट्रेड कर ही नहीं सकती हूँ और मैं तो एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ट्रेड दे रही हूँ. आई एम नॉट सपोज टू ट्रेड एंड आई एम नॉट ट्रेडिंग एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट आई गिव. जो लिखते रहो आप लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? बट जो लोगों को मेरी रिसर्च से फर्क पड़ता है, जो लोग पैसा बनाते हैं मेरी रिसर्च से, they should really come forward and write and support that the research is genuine. Once the levels are broken out, you do get a good movement. I'm pretty happy and I want to show you the screen. And I have 4 more stocks on my radar which you can keep on your radar as well. Paras again 20% upper circuit में लो. JSW Energy, हर स्टॉक जो भी आप उठा के देखते हैं सबने बहुत बेहतरीन movement दिए हैं. I'm just hoping that you guys are making money. I'm just hoping that you are really doing your money management, risk management, trade management. और मैं रोज आपके लिए स्टॉक निकल के लाऊंगी ताकि आप लोग पैसा बना सको. तो पहले देखते हैं स्क्रीन और उस पे देखते हैं नंदन डेनिम्स and how beautifully it has broken out. आपके सामने नंदन डेनिम है. 49 का लेवल था. एक दिन ये खुला, इसने 48.9 का हाई लगाया था और वहां से नीचे आ गया था. And look at the breakout that it has got today. It got locked in upper circuit. You know, Nandan Denim के ऊपर मैंने एक short video भी बनाया और उसमें मैंने बात की है कि how their financials have been shifted from being negative to positive. मतलब जो ये कंपनी लॉस में थी, लॉस मेकिंग से turn into positive. Then I combine it with the price, right? अगर आप ये सारी चीज एक साथ मिला देते हो, like you understand the shift in the fundamentals, you understand the dynamics that's happening in the business, and then you combine it with the technicals and the delivery percentage and everything, then you get the perfect fit. आज के वीडियो में मैं बात करूंगी 4 स्टॉक्स जिसमें एक दो के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है. आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द फंडामेंटल्स, बट जहां फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते वहां आई प्रेफर कि हम क्विक 10, 12, 15% का प्रॉफिट लें और बाहर आ जाए, राइट? तो मैं स्टार्ट करूंगी वर्स्ट and I'll go on to the best company, like where I feel that where the company is really looking. I mean, in fact, all of them are technically sound, but fundamentally, I wouldn't say कि बहुत अच्छे हैं, but still, they're looking pretty good. So I will start with first company, SCILAL, which is Shipping Corporation of India, right? उसी की ये सब्सिडरी है और आप इस पे देख सकते हैं this has been really part of the this is part of the Shipping Corporation of India, and this has been listed separated from its parent company, right? And I want to show you the volumes that have come, right? ये इसकी IPO कैंडल है, स्टॉक नीचे गया फिर ऊपर गया कुछ समय रेंज बाउंड होने के बाद, और उसके बाद क्या है कि ये जो प्राइस है ना, ये स्लोली ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है. आप देख सकते हैं हाउ प्राइस इज शिफ्टिंग ग्रेजुअली इन द अपर डायरेक्शन. बाइंग की अपॉर्चुनिटी यू कैन डेफिनेटली सी अबव 78 आपको ध्यान रखना है. और मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ उसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि इट इज, look at the volumes that have come today. Look at the volumes that have come today. Look at the huge volumes that have come today here. And how, like previously, this was the day when the volumes have come, and when this zigzag what's happening, the volumes have dried up in that direction. And today the volumes have come and it's broken the past barrier with volumes. So हमारी entry यहीं पे आएगी 78 पे, राइट? माइंड योर लेवल्स. अगर कैप खुल जाते हैं तो रीट्रेस होने का वेट करो. सपोज यहाँ खुल जाता है कल, तो आप रीट्रेस होने का वेट करो या फिर ये जो आज हाई लगाया उसको क्रॉस करने का वेट करो, राइट? तो ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा. फंडामेंटल्स में इसके क्विकली चेक कर लेते हैं हम कि व्हाट इज इन द फंडामेंटल्स, और बहुत ज्यादा समय मैं वहां नहीं लगाऊंगी बिकॉज
ये सारे मोमेंटम स्टॉक्स होंगे। इनमें से मैं कोई भी लंबे समय के लिए आपको नहीं दे रही हूँ। 3608 करोड़ की कंपनी है, 76 का पी है, ROC is 1.72, ROE is about 1.44. बहुत अच्छे फंडामेंटल्स दिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.12 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। और अगर हम बात करते हैं व्हाट इज रियली हैपनिंग in the company, so sales are just okay, like I'm not finding anything very attractive here, so it is going to be technical breakout, not फंडामेंटल ब्रेकआउट। आप देखो, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेगेटिव है, राइट? दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर आल्सो नेगेटिव। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस, तो अर्निंग पर शेयर छोटा सा पॉजिटिव है। और अगर हम बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑल्सो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है नेगेटिव है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो देयर इज सम नेट प्रॉफिट विच इज पॉजिटिव। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। और अगर हम बात करते हैं कि cash from operating activity which is negative, which is not a good idea, or profit again is negative, so there are many negatives. But I wanted to read out what the company really does, right? So Shipping Corporation of India Land and Assets is the process of strategic disinvestment of its equity stake in Shipping Corporation of India Limited, together with transfer of management control. To facilitate this investment process of the company is an effective, efficient, and rapid manner, and also to unlock the value of the business and the assets. It is found appropriate that the non-core assets of the company, the value of which is not getting reflected in the value of the business of SCI, should be separated from SCI and should be kept in an independent identity. So, and separate strategy should be formed for unlocking the value of such non-core assets. So basically, it's a part of Shipping Corporation of India. And अगर आप देखते हैं broadly, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी आज ब्रेकआउट आया था और मैंने ये स्टॉक आप लोगों को दिया था। आप लोगों को ये स्टॉक आज मैंने दिया था। ये I have given for a buy at about 280 or something. I have given 280 पे बाय के लिए दिया था और इसने 289.85 का हाई लगाया था। So that is my first stock, SCILAL, right? Skilal. I don't know how do you pronounce it, but this is how it is. SCILAL, right? This is the stock, and the reason simply is a technical breakout. Fundamentally, there's nothing much that I can see over here. But anyway, technical momentum, technical breakout जब आता है, देखो आप लोग बहुत आके लिखते हो कि years से be registered, how can you suggest some this kind of a trade? I'm not suggesting, I'm just sharing the research कि मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। आपको नहीं अच्छा लग रहा मत लो, right? I'm not forcing you to buy. You're not my client. I'm not charging money from you, right? But I'm telling you कि यहाँ पे एक टेक्निकल ब्रेकआउट आ रहा है, right? आपकी चॉइस है, आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। You're not my client where I have committed by taking some money from you. मेरे को रिसर्च में अच्छा लग रहा है, 10% 15% कमो अगर आपको मिल जाते हैं, why not, है ना? तो दैट्स माय फर्स्ट स्टॉक। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टॉक आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले उसको हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। 361 वैप, इस स्टॉक की जो एक दिस इज अ 29,000 करोड़ कंपनी, P is about 36, ROC is about 14.5, ROE is about 24.5। और मुझे जो ना इस तरह के बिजनेसेस जो ये करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। This is IIFL Wealth Management Limited. It was founded in 2008. It's one of the largest private wealth management firm in India. The company mainly acts as wealth manager and provides services relating to financial products, distribution, advisory, portfolio management services by mobilizing funds and assets of various classes of investors, including high net individuals. तो ये किस किस सेगमेंट में काम करते हैं? वेल्थ मैनेज करते हैं, मतलब डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी एडवाइजरी देते हैं, लेंडिंग सॉल्यूशंस देते हैं, एस्टेट प्लानिंग देते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांजैक्शन एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। एसेट मैनेजमेंट ये पीएमएस करते हैं, म्यूचुअल फंड एंड लिस्टेड एंड प्राइवेट इक्विटीज, रियल एस्टेट, प्राइवेट क्रेडिट एंड मल्टी एसेट्स। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ट्रांजैक्शन से इनका 28% आता है, ARR से 72% आता है। Geographical split की बात करते हैं, the company has a presence of in 4 countries: Singapore, Mauritius, other than India, right?
एंड डोमेस्टिक में अगर बात करें तो इनका 98% का रेवेन्यू है और 2% का रेवेन्यू है वो फ्रॉम अब्रॉड. अगर इनके एसेट्स, हाउ मच एसेट्स आर दे मैनेजिंग? इट्स 4,66,000 crore. वर्क मैनेजमेंट से इनका स्प्लिट है 85% का और एसेट मैनेजमेंट से 15% का, राइट? So this is how the company looks, but there are some red flags in this company. Company is expected to give good quarter. Company has been maintaining a healthy dividend payout, right? But the stock is 8.43 times its book value. And company has delivered poor sales growth and promoters holding is only 17.8%. Okay. उसके बाद बात करते हैं operating profit margins की. तो इनके operating profit margins have been pretty decent, right? 53, 55, 42, 60. In the recent quarter, they have produced 36% operating profit margins. Net profits की बात करें तो लगातार there is a growth and EPS is positive. अगर हम बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी there is a growth in the profits, growth in the operating profits, operating profit margins. Okay. उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स हैं 3,414 and borrowings are 9,472 crores, which is something, borrowings are continuously increasing, right? Which is not a good idea. अगर हम बात करें कि किस लिए, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन्होंने कर रखी हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन्होंने कर रखी है 9,411 करोड़ की, एंड इसके बाद इनकी लीज लायबिलिटीज है 61 करोड़ की. Okay, cash from operating activity, though they are not having a positive cash from operating activity, but they are having profits from operations. Okay, debtor days की बात करें तो थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, from 57 it has gone down to 58. और अगर हम बात करें promoters holding की, तो promoters धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस कर रहे हैं, but who is increasing their stake? It's the FIs who are increasing their stake slowly from 24.9% से बढ़ा के उन्होंने 63.22% कर दिया, और DIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 1.37% से बढ़ा के 8.34% कर दिया है, और पब्लिक इसमें केवल 10.7% इन्वेस्टेड है, और प्रोमोटर्स होल्डिंग है 17.76%. अब चल के इसका प्राइस भी देख लेते हैं. तो प्राइस इसका है 361 wealth management. Here is it. So अब आप इसको ना, मेरा ये फेवरेट पैटर्न आ गया आपके सामने, यहाँ देखिए ये, एंड इसको हम ब्रॉडली ऐसे भी देख सकते हैं. तो आपको ना लाइक एक इमेजिनेटिव पावर होनी चाहिए आपके पास टू बी एबल टू रीड द प्राइस कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है प्राइस का, वो आपके पास होना चाहिए. और ये आता है लगातार स्टॉक मार्केट में बैठने से और देखने से और अपना एक सिस्टम डेवलप करने से. सो मेरे हिसाब से इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, which is 361 WAM. इसमें 820 के ऊपर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं अबाउट 750. टारगेट्स इसमें क्या रहेंगे? पहला टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा 850 का. सो 820 पे बाय करें तो 850 का पहला टारगेट आता हुआ दिखाई देगा. दूसरा टारगेट आपको दिखाई कर देगा 866 का, और तीसरा टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा 895 का. After it crosses 895, 920, 940, 960, ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे. सो 361 ये आपको ध्यान में रखना है. फंडामेंटल लुक्स बेटर देन एटलीस्ट SCI LAN, उससे बेटर फंडामेंटल्स लग रहे हैं, और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं स्टॉक में वो भी बहुत स्टॉक हो रहे हैं. तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था. उसके बाद स्टॉक दूंगी मैं, जो आपको स्टॉक दूंगी वो है केफिन. केफिन भी सेम कैटेगरी का स्टॉक है, ऑलमोस्ट जैसा 360 WAM है वैसा ही केफिन है. सो केफिन को हम अगेन देख सकते हैं कि इसमें अगर हम एक प्राइस को अगर रीड करने की कोशिश करें तो दिस इज हाउ प्राइस लुक्स लाइक. सेम ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है और प्राइस डेवलप हो रहा है. आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी आती हुई
above this place when the past barriers will be broken. यहाँ पे कहीं पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी एट 745, और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है 660 पे तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहने वाला है 777 का, और 777 के बाद आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है 810 का, और 810 के बाद 850, 875, 900 के टारगेट भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। चल के इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। केफिन की ये स्टॉक मैंने बहुत लोअर लेवल पे आप लोगों को दिया था, बट अगेन पुरानी बात हो गई है। It is about 12,232 crore company. P is about 49.7 and ROC is about 30.3% and ROE is about 24.5%. क्या किस स्फीयर में काम करते हैं? Basically, KFin Technologies Limited is a leading technology-driven financial service platform. The company provides services and solutions to asset managers and corporate issuers across asset classes in India and provides several investor solutions, including transaction, originating and processing of mutual funds and private retirement schemes in Malaysia, Philippines and Hong Kong. तो ये इन्वेस्टर सोल्यूशन देते हैं, इश्योर सोल्यूशन देते हैं, ग्लोबल बिजनेस, डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड सर्विसेज देते हैं, और ये मार्केट लीडरशिप है। Largest investor solution provided in Indian mutual funds. The company has 33.5% equity mutual fund AAUM market share versus 28.8% in year 2020. The company has an overall market share of 46.5%. तो आप कोई अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो जो उसका इशूअर होता है वो ज्यादातर मैंने देखा केफिन से ही आता है। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ऑफ growth of 94% CAGR over last 5 years and company has delivered good return on equity. So जो इसके कॉन्स है वो ये है कि 10.7 times its book value it's trading and capital working capital have increased from 54 days to 102 days. अगर हम बात करते हैं इसकी सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ ग्रोथ, देयर इज अ वेरी नाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 45%, व्हिच इज अ वेरी वेरी नाइस प्रॉफिट परसेंटेज। एंड अगर हम बात करते हैं ईपीएस में लगातार एक ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है लगातार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो सेल्स हैव डेफिनेटली गॉन अप ईयर ऑन ईयर बेसिस, profits have gone up, operating profit margins have been decent and very, very stable. They are paying dividend as well and EPS is also growing. अब बात करते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स आर 970 करोड़ और बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 49 करोड़, so that means debt to equity ratio is pretty good. और अगर हम बात करते हैं इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, they have been generating cash from operating activity and the profits from operations are growing. Debtor days have gone down एंड अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल डेज तो वो थोड़े से ऊपर गए हैं। अगर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो देयर इज अ डिक्लाइन इन द प्रोमोटर्स होल्डिंग बट देयर इज एन इंक्रीज इन एफआईआईज एज वेल एज डीआईएस होल्डिंग की थोड़ी नीचे गई है और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी ऊपर गई है। इन सबको कंक्लूसिवली मिला के जो मुझे दिखता है KFin Technology is going to be a see if you all remember मैंने KFin Technology आपको बाय के लिए दिया था 330, यहाँ पे कहीं पे दिया था, इस जगह पे बाय के लिए दिया था 335 पे। 335 से स्टॉक में हाई लगा है 819 का, और इसको टाइम कितना लगा ये मैंने दिया था आपको मई 23 में। तो एक साल में इसने आपको 3 times almost like 2.5 times रिटर्न दे दिया है। एंड अगेन द स्टॉक इज एन अप ट्रेंड एंड लुक्स रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। 745 के ऊपर बाय करेंगे और नीचे गिरता है 660 पे तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। KFin इज माय थर्ड स्टॉक। और लास्ट स्टॉक है आज का थॉमस कुक। थॉमस कुक ये मैंने लाइव मार्केट में भी आप लोगों को दिया है और स्टॉक इज लुकिंग प्रीटी प्रॉमिसिंग, गोइंग इन द डायरेक्शन। और इसके फंडामेंटल्स क्विकली देख लेते हैं। तो हमको बाय करना है 227, ये मैं आपको वैसे टेलीग्राम चैनल पे दे चुकी हूँ। 227 के ऊपर हम बाय करेंगे। अगर ये नीचे गिरता है 200 तक हम इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और क्विकली इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं। थॉमस कुक कंपनी जो है 10,441 करोड़ की है, 40.3 का
PE है, ROC is about 19, ROE is about 13.7. और अगर बात करें ये लोग किस स्पेस में काम करते हैं, तो थॉमस कुक ऑफर्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज दैट इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज, कॉर्पोरेट ट्रैवल, MICE, leisure travel, visa and passport services, and e-businesses. The company set up its first office in India in 1881, more than 150 years old. The Thomas Cook India Group spans over 25 countries across 5 continents, right? तो थॉमस कुक के फंडामेंटल्स देखते हैं तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, हैव डिलीवर्ड गुड CAGR, सो इट्स प्रीटी गुड एज ऑफ नाउ. अगर हम बात करते हैं इनकी सेल्स की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, देयर इज अ ग्रोथ इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. एंड अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, नेगेटिव से प्रॉफिट जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. EPS पॉजिटिव है और सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो लास्ट 12-13 साल में जो है मोर देन 17-18 टाइम्स इनका सेल्स ग्रो किया है. प्रॉफिट्स इनका ग्रो किया है ओनली 4 टाइम्स, राइट. अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें जो कभी 26% होते थे, वो रह गए हैं 6% के आसपास. सो ग्रोथ इज नॉट ह्यूज, बट या रिसेंटली दे आर डूइंग प्रीटी गुड. बीच में थोड़ा सा स्लम्प आने के बाद. और अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इनके लगातार पहले बीच में 8,000 करोड़ के करीब रिजर्व्स थे, फिर नीचे जाके अब थोड़ा सा रिजर्व वापस इंक्रीज हो रहे हैं. और बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स लगातार नीचे जा रही है. अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर पॉजिटिव. और अगर हम डेटर डेज की बात करें तो नीचे गए हैं. ऑपरेटर्स प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन है. DIFIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, DIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा डिक्रीज किया है, और गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है. सो थॉमस कुक को एक बार फिर से देखते हैं. बाय अबव मैंने तो इसको ट्रिपल आई थिंक 225 पे बाय दिया था, तो यू कैन नाउ बाय अबव 228. अगर ये 200 तक नीचे गिरता है आप और बाय कर सकते हैं. आपके टारगेट्स रहने वाले हैं इसमें 250, 260, 270, 280, 290 एंड 300 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं. टाइम पीरियड आपका रहेगा 1 साल का. सो ये 4 स्टॉक मेरे रडार पे हैं. वंस अगेन लेट मी जस्ट क्विकली स्कैन थ्रू एंड टेल यू. SCI LAL, राइट, दैट्स माय फर्स्ट स्टॉक. आप इसको रडार पे रख सकते हैं, बाय अबव 78. दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है 361, राइट. दिस लुक्स प्रॉमिसिंग, वी कैन बाय इट अबव 820. और अगर ये नीचे जाता है 750 तक आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. टारगेट इसमें रहेंगे 900 तक के, 900, 950, 1000 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं. केफिन अच्छा लग रहा है, केफिन टेक्नोलॉजीज, इसमें आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 745 के ऊपर. और लास्ट में जो मुझे अच्छा स्टॉक दिख रहा है वो दिख रहा है थॉमस कुक, राइट. ये ऑलरेडी मैं लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे चुकी हूँ. सो ये 4 स्टॉक्स है मेरे रडार पे. अब आप कैसे ट्रेड करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आप पहले एंट्री लेते हैं तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और अगर आप रिस्क नहीं मैनेज करते हैं, सारी कैपिटल एक स्टॉक में लगा देते हैं, देन यू गोना बी रिस्पॉन्सिबल. आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट. आई कैन नॉट ट्रेड इन एनी ऑफ देम. ना मैं मूव कर सकती हूँ मार्केट को, मैं केवल प्राइस एक्शन को रीड कर सकती हूँ, उसके चलते आपको बता सकती हूँ कि कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है. मेरा काम पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. आपका सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत 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 जरूरी है. टेक केयर एंड सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो मॉर्निंग. बाय बाय. लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बिकॉज अगर आप रुके ना तो ये चैनल की ग्रोथ रुक जाएगी और आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी साथ साथ. डोंट